हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं क्लास 12 एनएस बोर्ड का जो है चैप्टर नंबर 4। ये चैप्टर जो 4 है हिस्ट्री का है यानी इतिहास का है, जिसमें आज हम करेंगे द वैदिक एज यानी जो है वैदिक काल के क्या विशेषताएं थे उसके बारे में हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। ये चैप्टर जो होगा कई मानने में कई क्लास के बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, चाहे वो सीबीएसई पढ़ते हों, चाहे एनआईएस बोर्ड के हों, चाहे यूपी बिहार बोर्ड के बच्चे हों, या यूपीएससी के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो या जो है यूनिवर्सिटी में जो है पढ़ाई कर रहे हो, बीए कर रहे हो, तो उन सभी बच्चों के लिए ये चैप्टर जो होगा अत्यंत महत्वपूर्ण होगा, जिनके सिलेबस में द वैदिक एज है यानी वैदिक काल है। ठीक है, लेकिन आपको पता है कि चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूँ, जिसको आपको सोचना भी चाहिए, विचार भी करना चाहिए और अमल भी करना चाहिए, वो ये है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इंपॉर्टेंट बात ये भी रहता है, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि दोस्तों लाइक कीजिएगा तो बनाने वाले का मनोबल बढ़ता है, सब्सक्राइब कीजिएगा तो इससे ये होता है कि जब भी मैं कोई वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिल जाएगा। और देखिए शेयर का मतलब ये होता है कि आपके थ्रू न जाने किन बच्चों को हेल्प मिल जाए, ये आप भी नहीं जानोगे, इसलिए जो है आप शेयर जरूर करो। ठीक है, व्हाट्सएप स्टेटस पे भी लगाओ। दोस्तों एनएसएस सेंटर जो है कई मानने में बहुत से बच्चों के लिए हेल्पफुल है, चाहे वो 8th क्लास हो, 9th 10th 11th 12th हो, चाहे वो एनआईएस बोर्ड के बच्चे हों, ठीक है, चाहे बीए एमए के बच्चे हो, सभी क्लासों के लिए कुछ ना कुछ जो है त्रिपाण सेंटर में उपलब्ध है। तो इसलिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप सब्सक्राइब करके इसको चैनल को जो है सेव कर लो, नहीं तो बाद में अगर रिसर्च करोगे तो शायद आपको ये चैनल प्राप्त ना हो। तो इसलिए सोचना नहीं, विचार नहीं करना है, सब्सक्राइब करके जो है अपने पास सेव करना है। दोस्तों ये तो बात था आपके लिए, लेकिन आप देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। नेक्स्ट टॉपिक इज अ सोशल चेंज इन द लेटर वैदिक फेज। देयर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एयर द सोशल चेंजेस इन द later Vedic phase. The family remained the basis unit of the Vedic society. However, is the composition underwent a change. They underwent a change. Their later Vedic family become a large enough to be called a joint family, with the 3 or 4 generations living together. The role of the Hathras is discovered at the Atrajinkera and the Ashar Khetra is both in the western Uttar Pradesh. And so that and this were to the mean from the communals is a feeding or for a cooking their food of large families. The institution of their gotra developed in the period, and this means that a people having common gotra as a descended and from a common ancestor, and no marriage between to the member of the same gotra and could take place. The monogamous is a marriage where to the preferred even though the polygamous was the frequent, and some restriction on women appear during this period. In the text, woman and has been to counted as a wife along with the dice and wins. Wines and in another text of daughter has been to said to be a source of all sorrow. Woman had to be stay with her husband at his place after the marriage. The participation of women in a public meeting was restricted. However, the most important change was the rise and growth of social differentiation in the form of the Varna system. The four Varna in which the society come to divide were the Brahmans, Kshatriya, Vaishya and Shudra. The growing number of sacrifice and rituals is during the period is made of Brahmans is very powerful. They conducted as a various rituals, is including those related to the different stage of agricultural operation. This made them all there is a more important. The Kshatriya is the next in the social hierarchies as well to the ruler. Along the Brahman is a control of all aspect of life. The Vaishyas, the most is a numerous Varna, where is engaged in the agriculture as well as the trade and artisanal activity. The Brahman and the Kshatriya where is dependent on their tribute, gift and taxes. The paid to them by the Vaishyas. The Shudra there is a fourth Varnas is where at the bottom of the social hierarchies, and there is oriented to be in their service of the 3 upper Varnas. There is not an entire to be use of Upanishad, and the Samakra is investigated on with the scale through the necessaries to acquire education.
The other three is a one where is entitled to such as a ceremony and another where is known as the Devisas. This can be constructed as the beginning of the impositions of disability on their Shudras as well as the beginning of concept of ritual pollution. Another important institution that began to take shape was the ashram, a different stage of life. There is a brahmacharya, a student life, and the grihastra is the householder. Grihastra is the householder, and Bansprastha is here is here mitage. And the stage is mentioned in the text. Later is a sannyas. There are four stages also is come to be added. Together with the varnas, it's come to known as the varna ashram dhama. यहाँ पर देखा जाए तो उत्तर वैदिक काल के सामाजिक परिवर्तन, देखिए उत्तर वैदिक काल के सामाजिक परिवर्तन किस प्रकार हुआ और यहाँ पर क्या खासियत ये है। कहते हैं परिवार अभी भी उत्तर वैदिक समाज की बुनियादी इकाई थी, यानी उत्तर वैदिक काल में भी जो है परिवार जो है बुनियादी इकाई थी और यद्यपि इसके रचनात्मक ढांचों में परिवर्तन आ गया था। उत्तर वैदिक कालीन जो है परिवारिक काफ़ी विशाल हो गए थे और जिसे संयुक्त परिवार कहा जाता था, यानी काफ़ी विशाल होने के कारण ये संयुक्त परिवार में बदल गया था जिसमें 3 या 4 पीढ़ी के लोग एक साथ एक ही परिवार में रहते थे। पश्चिम उत्तर प्रदेश में जो है अंतरा जिखोरा और जो अच्छी छत्र में मिले चूल्हे की कतारों से पता चलता है कि यहाँ जो है सामूहिक भोज के लिए या फिर विशाल परिवारों के लिए भोजन पकाया जाता होगा। गोत्र की संकल्पना भी इसी काल में विकसित हुई। इसका अर्थ यह हुआ कि यह एक ही गोत्र के लोग एक ही वंशावली से थे और एक ही गोत्र के व्यक्तियों में परंपरा विवाह संबंध नहीं होते थे। यद्यपि बहुपति प्रथा भी उस समय प्रचलित थी, परंतु एक पत्नी विवाह प्रथा को ही बेहतर समझा जाता था, जैसे आज के समय भी समझा जाता है। इस काल के दौरान महिलाओं पर कुछ प्रतिबंध भी लगाए गए थे। एक ग्रंथ में उल्लेख मिलता है कि नारी को जूते और मद्यपान की तरह व्यासन माना जाता था, यानी उस समय नारियों को जूते के समान और मद्यपान के समान माना जाता था। तो ये बहुत जो है उनकी क्रूरता को दर्शाता है। एक अन्य ग्रंथ में पुत्री को सभी दुखों से मूल रूप में वर्णित किया गया है, यानी इससे पता लगता है कि उस समय औरतों की दशा बहुत बुरी थी। महिला विवाह के बाद अपने पति के घर में रहती थी। सार्वजनिक सभाओं में महिलाओं की भागीदारी पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। तो इससे साफ जाहिर होता है कि उस समय थोड़ी सी जो रूल रेगुलेशन थी वो महिलाओं के लिए बहुत कठोर हो गई थी। यद्यपि सबसे बड़ी परिवर्तन उस समय तो था, जो सबसे बड़ी बात था वर्ण व्यवस्था की। कहते हैं वर्ण व्यवस्था सबसे अधिक परिवर्तनशील थी के रूप में समाज में वर्गीकरण का उद्भव हुआ और विकास हुआ। समाज को जिन 4 वर्णों में बांटा गया था वो थे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इस काल में बलियों और धार्मिक कर्म कांड की जो है बढ़ती संख्या में ब्राह्मणों को बहुत ही शक्तिशाली बना दिया गया था और विभिन्न प्रकार के धार्मिक अनुष्ठान भी कराते थे, जिनमें कृषि से संबंधित क्रियाकलापों के विभिन्न चरणों में संबंधित अनुष्ठान भी सम्मिलित थे। इसके वजह से वो बहुत ही महत्वपूर्ण समझे जाने लग गए थे। और इसकी अगली सामाजिक श्रेणी में आते थे क्षत्रिय, जो शासक वर्ग में थे और ब्राह्मणों के साथ मिलकर ये जीवन के सभी पक्षों पर नियंत्रण करते थे। वैश्य वर्ण जो बहुत बड़ी संख्या में थे, कृषि कार्य के साथ साथ व्यापार और कारीगर के काम भी किया करते थे और ब्राह्मण और क्षत्रिय वैश्यों द्वारा दिए जाने वाले दान दक्षिणा उपहार को कर पर निर्भर होता था। क्षुद्र अर्थात चौथे वर्ण के लोग सामाजिक श्रेणी में कम में सबसे निचले स्तर पर आते थे। उन्हें तीनों वर्णों की जो है सेवा करनी पड़ती थी। तो ये बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर आ जाता है कि उस समय ये वर्ण व्यवस्था में बटी थी। दोस्तों अगर आपको इस बात को याद करना है तो आप याद रखना कि जो है मुख को जो है ब्राह्मण का बात बोल सकते हो और जो हमारा बाजू है वो है क्षत्रिय का है, वैश्य पेट हो गया और क्षुद्र जो होता है पैर होता है। तो ये बहुत ही काफ़ी आसान याद करने की तरीका है, ठीक है। अगर आप इस तरह से याद करोगे तो बहुत आसानी से जो है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के कार्य प्रणाली को आप याद कर सकते हो। तो कहते हैं ये सब याद करने के लिए सिर्फ हमें समझ की ज़रूरत होती है। यहाँ पर अगर देखा जाए तो अगर हम क्षुद्रों की बात करें तो क्षुद्रों को जो होता था सभी की सेवा किया करते थे, सभी को सेवा करना ही उनका दायित्व था, उन्हें यही आदेश दिया जाने का प्रावधान था।
उन्हें उपनयन संस्कार शिक्षा ग्रहण करने के लिए किए जाने वाले पवित्र यौवती संस्कार जैसे धार्मिक और कर्तव्यों का अधिकार नहीं था। यानी क्षुद्रों को किसी प्रकार का अनुष्ठान करने का अधिकार नहीं दिया जाता था। अन्य तीनों वर्णों के लोगों इस संस्कार की अनुमति थी। यानी 3 वर्णों को सभी तरह के संस्कार करने का पूरा अनुमति दी गई थी और इसलिए इन्हें जो है द्विज कहा जाता था, जिसका सांकेतिक अर्थ है कि वह 2 बार जन्म लेते थे। यानी द्वि 2 ज यानी जन्म लेना। इसे क्षुद्रों के कमजोर बनाने और धार्मिक कर्मकांडों में बुराइयों की संकल्पना की शुरुआत के रूप में माना जा सकता है। एक अन्य महत्वपूर्ण संस्था जिसे इस काल में रूप लेना आरंभ कर दिया था वह थी आश्रम व्यवस्था। आश्रम व्यवस्था का मतलब यही होता है जीवन की विभिन्न अवस्थाएं। जैसे आपको पता है ब्रह्मचार्य यानी विद्या जो विद्यार्थी के जीवन आपको बिताना पड़ता था, 25-25 साल में इसको बदल दिया गया था। यानी ब्रह्मचार्य अवस्था में आपको विद्यार्थी जीवन में जीना था और विद्यार्थी बन के ही जो है अपना शिक्षा ग्रहण करना होता था। उसके बाद दूसरा चरण जो है गृह अवस्था आता था, गृह आश्रम आती थी जिसमें घर में रहना होता था, जहाँ पर अपना परिवार बसाना होता था। उसके पश्चात वन प्रस्थान यानी बैराग लेना था। इसमें बच्चों को पढ़ाना उड़ाना यही उनका कार्य हो जाता था। इन अवस्थाओं का वर्ण ग्रंथों में हमें मिलती है। बाद में संन्यास आश्रम की चौथी अवस्था को भी जीवन में जोड़ा गया था। वन व्यवस्था के साथ इसे जो है वन आश्रम धर्म का नाम भी दिया गया था, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर आता है। The next topic is the earlier Vedic religions. There is the most important here, the earlier Vedic religions and their prayer to be propitiate of God for the physical is a protection and for the material gains were the main corners of the Rig Vedic people. The Rig Vedic gods were generally is a personifications of different aspects of the natural forces such as the rains, storms, sun, etc. The tribute of those gods is also a fact there is a table and particular nature of society as we do not find many of goddess as mentioned in the text. The Indra, Agni, Varun, Mitra, Vyas, Pushana, and the Yama and Soma, etc. are all is a male god. In comparisons, we have only a few goddess such as the Usha, Sarvasti, Prithvi, etc., which occupy the secondary position in their pantheon. The function of different god reflects there is a need in their society. Thus, the sign there are Rigvedic people were engaged in a war with each other. There is a worshipped Indra as the god, and he is the most frequently mentioned god in the Rig Veda. He is a carrier there is a thunder volt and was also respected as the weather god, who was the rains, and the Marut, the god of the storm, added to the Indra in the wars is the way of thrice man. Added there is a leader in the Trival's war, and the Agni, their fire god, was the god of the home and was considered as the intermediaries is become between God and man. Soma was associated with the plants and the herbals, and Som was also as a plant from which is the intercoating juice was extracted. And this juice was drunk at the sacrifice is a Varna is another important deity. That is, and there is the keeper of the cosmics in the order known as the Rita. And the Rita was an important aspect of the tree was set up. Pushans and was the god of the road, and the harvest man is a cattle in the life of pastoral's nomad. And this god of Masa has been very important. Other gods were similarly associated with their other aspect of nature and the life. All these gods were invoked and propitiated at the yojans, and the sacrifice there is a sacrifices were organized by their chief of the tribes and performed by priests. The god thus is invoked and the sacrifice is supposedly is rewarded their sacrifiers with the success in a war and progenis increasing and cattle and long life. It is also both there is a large number of gifts in the form of dana and the dakshina to be precise. It is important here to note that during their entire Vedic phase, the people did not construct a temple, and nor did there is a worship any statue. There a feature of
Indian religious developed much later. यदि बात हम करें आरंभिक वैदिक में धर्म का क्या स्थान था, आरंभिक वैदिक काल में धर्म की क्या विशेषताएं थी, तो ये बात जान के हमें ये हैरानी होती है कि जो है सारी सुरक्षा और सुख समृद्धि की जो है सामग्री प्राप्त करने के लिए देवताओं के समक्ष प्रार्थना पूजा की जाती थी। कहते हैं उस समय जो है फीमेल जो है गॉड बहुत ही कम थे, तो ये बहुत बड़ी बात यहाँ पर आती है। कहते हैं पूजा अर्चना जो है ऋग्वैदिक काल के लोग जो है प्रमुखता से करते थे और ऋग्वैदिक काल के देवता जो है प्राकृतिक शक्तियों के विभिन्न रूप थे, जैसे वर्षा, तूफान, सूर्य इत्यादि। इन देवताओं के लक्षणों और विशेषताओं से ही यही प्रतिबिंबित होती है कि समाज का स्वरूप जनजातीय और प्रत्यय जो है सत्तात्मक यानी पुरुष प्रधान था, क्योंकि उनके ग्रंथों में किसी देवी के अस्तित्व का उल्लेख नहीं मिलता है, जो कि बहुत बड़ी बात यहाँ है। इंद्र, अग्नि और वरुण और मित्र, गौ और पुष्प, यम, सोम इत्यादि सभी देवता पुरुष ही थे। इसकी तुलना में हमारे पास कुछ ही देवियाँ थी, जैसे उषा, सरस्वती, पृथ्वी इत्यादि, जिन्हें धर्म के व्याख्या में द्वितीय स्थान पर रखा गया था। यानी देखा जाए तो उस समय पुरुष प्रधान होने के नाते पुरुष ही देवताओं के रूप में पूजनीय थे। देखा जाए तो विभिन्न देवताओं के कार्य से समाज में उनकी आवश्यकता का पता चलता था और अंततः ऋग्वैदिक काल के लोग जो है इंद्र की युद्ध की देवता की तरह पूजा किया करते थे। ऋग्वेद में अनेक स्थानों पर इंद्र देव का जो उल्लेख भी हमें मिलता है और उसके हाथों में ब्रज होता था, यानी ब्रज जो होती थी, जिसको कहते हैं कि दगीची की हड्डियों से बनाया गया था, उसे ब्रज होती थी। और उन्हें मौसम के ऐसे देवता के रूप में भी पूजा जाता था जो वर्षा लाते थे। पवन देव मरुत युद्धों में इंद्र की उसी प्रकार सहायता करते थे, जैसे जनजातीय लोग जो थे जनजातीय युद्धों में अपने नायकों की सहायता किया करते थे। अग्निदेव जो आग के देवता थे, उन्हें घर का देव मानते थे और उन्हें देवताओं और मनुष्य के बीच की कड़ी माना जाता था। सोम का संबंध पौधे और जड़ी बूटियों के साथ था। सोम का एक ऐसा पौधा था जिसे मादक रस निकाला जाता था और बलि दिए जाने के समय सोम रस का पान भी किया जाता था। वरुण एक अत्यंत महत्वपूर्ण देव थे, जिन्हें ब्रह्मांड का व्यवस्थापक माना जाता था। यानी वरुण को जो था ब्रह्मांड का व्यवस्थापक माना जाता था, जिसे ऋत कहते थे, और यह ऋत जनजाति व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण पक्ष भी था। पुष्प जो था सरके चरवाहों और पालतू पशुओं का देवता था। पशु चराने वाले दोषों के जीवन में इस देवता का जो है बहुत महत्वपूर्ण स्थान रहा होगा। अन्य देवों का भी इसी प्रकार प्राकृतिक और जीवन के अन्य पक्षों में संबंध था। तो बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट बात आता है, ठीक है, जहाँ जो है पुष्य, शर्कों और चरवाहों जो पालतू पशुओं का देवता माने जाते थे, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर बात आता है। इन सभी देवताओं का आह्वान किया जाता था और यज्ञों और बलिदानों के समय इनकी पूजा भी की जाती थी। इन बलियों की व्यवस्थाएं जनजातियों के प्रमुख व्यक्तियों द्वारा की जाती थी और संपूर्ण कर्मकांड यानी ब्राह्मण पुजारियों द्वारा कराया जाता था। बलियां दिए जाने के समय जिन देवताओं का आह्वान किया जाता था वह इन बलिदानों के जो है फलस्वरूप युद्ध में विजय, संतान उत्पत्ति, पशुधन में वृद्धि और दीर्घ आयु का वरदान देते थे। इस कार्य में ब्राह्मणों को दान दक्षिणा के रूप में बहुत संख्या में उपहार भी दिया जाता था। ध्यान देने योग्य बात यह है कि संपूर्ण वैदिक काल के दौरान लोगों ने किसी भी मंदिर का निर्माण नहीं किया और न ही किसी प्रकार की मूर्ति का पूजा अर्चना किया करते थे। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट था जो है वैदिक काल के अंतर्गत, कि उस समय वो लोगों ने ना तो कोई मूर्ति बनाए थे और ना ही वो कोई मंदिर बनाए थे और ना ही पूजा अर्चना की कोई मूर्ति पे इस समय में हमें मिलती है। Our next topic is a change in the later Vedic phase. There is the most important changes in the later Vedic phase. We have already noted that in the later Vedic period, agriculture had become on the important activity of the people. The changes in the material's life naturally resulted in a change in their attitudes toward the gods and goddess. 2. Continuous interactions with the local non-Aryan population also contribute to these changes. Thus, the Vishnu and the Rudra, which were the smaller deities in their Rig Veda, become extremely important. However, we do not have any reference to the different incarnations or avatars of the Vishnu. We are so familiar with any of these later Vedic
text. There is the most important here. Another important feature was the increase in the frequency and number of their yojana, which is generally indeed with their sacrifice of the large number of animal. This was probably the result of the growing importance of a class of Brahmans and their effort of the maintenance there is a supremacy in their changing society. Supremacy and their changing society, the yojanas, both there is a them large amount of the wealth in form of dana and the dakshina. And some of there is important yojanas where is a Asve, Medha and Vajrapaya on Rajya Sui, etc. There is the most important yojana, and there is you must be have heard about the yojanas in their story of the Mahabharata and Ramayana. In this is a yojanas which is the continued from to the many days of large part of gift way and went to be a Brahmans, and the purpose of this yojanas was to forward it is a firstly is establish the authorities of their chief over to people, and secondly it is the reinforced to the territorial respect of the palatines and sign people from to the all over the kingdoms were invited and to this sacrifice. You will find it interesting to know that a people began to the oppose and this sacrifice during their later Vedic period itself. A large number of cattle and other animals which were sacrificed at the end of the each yojana must have hampered the growth of economics. Therefore, a path of good conduct and self-sacrifice was recommended for happiness and the welfare in the last section of the Vedas. It's called to the Upanishad. The Upanishads contain two basic principles of Indian philosophy is why there are karma and the transmigration of soul. And the rebirth is based on the past deaths, and according to this text is a real happiness lies in the getting is a muska, yani moksha, the freedom from the cycle of birth and the rebirth. The moksha is the most important here, the freedom from the cycle of birth and rebirth. देखिए हमारे समक्ष आया है उत्तर वैदिक काल में हुए परिवर्तन। तो उत्तर वैदिक काल में बहुत से परिवर्तन हमें देखने को मिला। हमने पहले ही यह रेखांकित किया है कि उत्तर वैदिक काल में खेती बाड़ी लोगों का जो है मुख्य कार्य बन चुका था और भौतिक जीवन में आए परिवर्तन के परिणाम स्वरूप देवी और देवताओं के प्रति उनकी जो है अभिरुचियां में भी काफ़ी परिवर्तन देखने को मिला। स्थानीय आर्यन लोगों के साथ जो है परंपरा लगातार लेन देन ने भी इन परिवर्तनों में योगदान दिया था और इस प्रकार विष्णु और रुद्र जो ऋग्वैदिक काल में कम महत्वपूर्ण देवता थे अब बहुत ही महत्वपूर्ण देवता माने जाने लग गए थे। यद्यपि हमें उत्तर वैदिक काल के किसी भी साहित्य में विभिन्न अवतारों या विष्णु के उन अवतारों का कोई संकेत हमें नहीं मिलती है जिन्हें हम आज परिचित है। तो ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर आता है। उस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी कि बार बार यज्ञ कराना और इसकी संख्या में वृद्धि और उस यज्ञों का जो है समापन प्राय बहुत ही बड़ी संख्या में पशु बलि दिए जाने होते थे। शायद इसका कारण था कि ब्राह्मण वर्ग बढ़ता महत्व और बदलते समाज में अपना प्रभुता बनाए रखने के लिए किए गए अनेक प्रयास था। यानी जो पशु बल थी एक तरह से ब्राह्मणों के द्वारा अपनी वर्चस्व को बनाए रखने का उनका एक षड्यंत्र था। इस यज्ञों से ब्राह्मणों को बहुत बड़ी मात्रा में दान दक्षिणा और संपदा मिलती थी और कुछ प्रमुख यज्ञ थे यशमेघ, वाजपेयी और राजस्वई यज्ञ। ये सारे के सारे यज्ञ जो थे बहुत ही महत्वपूर्ण थे और बहुत जरूरी थे। महाभारत और रामायण की कथाओं में आपने इन यज्ञों के बारे में सुना ही होगा। आपने देखा ही था महाभारत में भी जहाँ पर युद्ध समाप्त हो जाने के बाद जो था युधिष्ठिर ने यज्ञ जो है किया था जिसमें उसने पूरा विश्व को विजय हासिल कर लिया था। अगर रामायण आपने देखा होगा तो उसमें देखा था कि इसमें एक यज्ञ किया गया था जिसमें जो है घोड़ा को स्वतंत्र विचरण करने के लिए छोड़ दिया गया था और लव कुश के द्वारा उसको पकड़ लिए जाने के कारणवश जो है युद्ध भी हुआ था। तो ये सारी जो थे ये यज्ञ थे जिसमें अपने आप को जो है सम्राट घोषित करने का एक सबसे आसान तरीका था, जिसमें जो भी अगर राजा इसके अगर बाध्य करता था
अगर वो घोड़ा को पकड़ता था तो उसको युद्ध करना पड़ता था और बाद में उसको जो है उसकी स्वामित्व स्वीकार करनी पड़ती थी। और घोड़ा जिस राज्य से गुजर जाता था उसका स्वामित्व स्वीकार कर लिया माना जाता था। तो इस तरह से जो था अपना वर्चस्व बनाने के लिए जो है अश्वमेध यज्ञ या वाजपेयी यज्ञ या राजस्व यज्ञ किया जाता था। इन यज्ञों जो कि कई दिनों तक चलते थे, इनके संपन्न होने पर उपहारों के अधिकांश हिस्सा ब्राह्मण को ही मिलता था, यानी ब्राह्मण को ही सबसे अधिक हिस्सा इसमें दिया जाता था। इन यज्ञों को करने का दोहरा उद्देश्य था कि प्रथम तो इससे लोग के ऊपर वर्चस्व स्थापित होता था, यानी वर्चस्व स्थापित करने के लिए ऐसे यज्ञ किया जाता था। और दूसरा, राजनीतिक दृष्टि से भी विशिष्ट प्रादेशिक क्षेत्र में राजनीतिक महत्ता स्थापित होती थी, क्योंकि इससे बलियों में संपूर्ण राज्य क्षेत्र में लोगों की जो है आमंत्रण किया जाता था। इससे उसकी प्रभुता का जो है चार चांद लग जाया करता था। आपको जो है जानकर आश्चर्य होगा कि उत्तर वैदिक काल में इस पशुवध का विरोध होना शुरू हो गया था और बहुत बड़ी संख्या में पशुओं और अन्य जानवरों को यज्ञ के अंत में बलि दिए जाने के कारण आर्थिक विकास में काफ़ी बाधा आने लग गई थी, क्योंकि पशुपालन एक प्रमुख व्यवसाय था। इसलिए वेदांत के उपनिषद कहे जाने वाले साहित्य में समृद्धि और कल्याण के लिए जो सद्व्यवहार और आत्मयाज्ञ की अनुशंसा की गई थी। उपनिषदों में भारतीय दर्शन के दो मूल्य सिद्धांत निहित थे, यानी कर्म और आत्मा का पुण्य जन्म लेना, अर्थात कर्म अनुसार जो है पुण्य जन्म लेना। इन ग्रंथों के अनुसार जो है वास्तविक जो है परम आनंद मोक्ष यानी मानव को जन्म मरण की आवरण से मुक्ति मिलने पर मिलता था। यानी लोगों को जो है मेन उद्देश्य उस समय यही होता था कि मोक्ष की प्राप्ति करना। मोक्ष की प्राप्ति का अर्थ होता था कि वो जन्म मरण के कर्मों से सदैव के लिए वो मुक्त हो जाया करते थे। The next topic is the most important here, the earlier Vedic politics. There is the most important here. We have a mention above that the chief social unit of the Aryan was known as the Jana. Their chief of unit was the politically leaders called Rajan. The main function of the chief was to protect the Jana and the cattle farm to the enemies. And he was the helped in their task by the tribals is a assemblies called Sabha, Samiti, Vidyatha, Jnana, and is a pair of Parishad. There is the most important there, the Parishad. Out of this Sabha and Samiti is where the most important assembly. All aspects of the life were discussed in the assemblies, and this may include a bar, distribution of their spoil of war, and judiciary and religious activity, etc. And thus there is assembly in the way of limited their power of the chief. Interestingly, there is a women were also allowed to participate in the deliberations of the Sabha and Samiti. There is the most important here. The post of their chief was not a hereditary. There is a tribes generally elected him. Third, there is a succession in the one family was now, but that was not based on the rule of the pre-generatures. And there is the eldest son of acquired to the position. The Purohita is assisted and advised their chief on the various matter. Another than to the Purohita is where or to a limited number of other officials is who assist the chief in the day-to-day tribe affair. Senanis and the Kulappa and the Gramanis, etc. are the some of the functionaries which find a mention in the Rig Veda. The Sena and army was not a permanent fighting groups and consist of the able bodies to the tribesmen who were mobilized at their time of the war. And Taskana and the carpenter and the Ratha Kara, their Karyota maker were to the responsible for making a coyotes. There is a no officially mentioned as the collector of taxes. There is a people offered to be chief is what is called Bali, and it was just a voluntary contribution made by their ordinary tribesmen and is a special occasion. All this show that the earlier Vedic politics was the uncomplicated system and the based on the support and active participation of all the tribesmen and situation, however, changed during to the later Vedic phase. There is the most important here. यहाँ पर जो हमारे समक्ष आया है
आरंभिक वैदिक राज्य व्यवस्था यानी पॉलिटिकल की इस समय क्या व्यवस्था थी, ये किस प्रकार की जाती थी। तो देखा जाए तो आरंभिक वैदिक राज्य व्यवस्था में बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट बात थी। ऊपर हमने उल्लेख किया है कि आर्य की प्रमुख सामाजिक इकाई थी जिसको जन कहते थे, और इस इकाई का प्रमुख राजनीतिक नेता होता था जिसे हम राजन कहते थे, और इस प्रमुख का मुखिया काम किया करता था जनता और पशुधन की शत्रुओं की रक्षा करना। अपने इस काम में उसकी सहायता करती थी। जनजाति संस्थाएं जिन्हें सभा समिति और विधाता गण और परिषद कहते थे, इन सबसे सभा और समिति सबसे महत्वपूर्ण संगठन में से एक माना जाता था, और इस सभाओं के जीवन के सभी पक्षों का विचार विमर्श होता था, और इसमें युद्धों में प्राप्त आय का वितरण, न्यायिक और धार्मिक कर्तव्य इत्यादि कुछ भी शामिल हो सकता था। इस प्रकार ये सभाएं एक तरह से इस राजनीतिक प्रमुख की शक्तियों की नियंत्रित भी करती थी। दिलचस्प बात यह है कि महिलाएं भी इस सभाओं और समिति के विचार विमर्श में भाग ले सकती थी। मुख्य का पद जो था वंशागत उस समय नहीं था, यानी जैसे पहले पुराने समय में होता था कि पिता के बाद ज्येष्ठ पुत्र को ही गद्दी पे बैठाया जाता था, उसको ही राजभार संभाला जाता था। जैसे आपने देखा भी होगा रामायण में कि जो राम को पद देने की सारे ने आग्रह किया था, ठीक है। लेकिन इस समय इस तरह की व्यवस्था नहीं थी, यानी ज्येष्ठ पुत्र यहाँ नहीं बनता था। उस समय चुनाव के द्वारा बनाने जाने का प्रावधान उस समय थी। कहते हैं अगर देखा जाए तो आमतौर पर उसका चुनाव जनजाति करती थी, यद्यपि उसकी उत्तराधिकारी उसी प्रमुख के परिवार से होने के संकेत मिलते थे, परंतु यह ज्येष्ठ अधिकारी यानी सबसे बड़े पुत्र का पिता का स्थान ग्रहण करने का जो नियम पर आधारित नहीं था। उस समय अनेक मामलों में पुरोहित मुखिया के परामर्श देता था। पुरोहितों के अतिरिक्त कुछ सीमित संख्याओं में पदाधिकारी कर्मचारी भी होते थे जो मुखिया को दिन प्रतिदिन के जनजाति मामलों में सहायता भी किया करते थे। सेनानी, कुलाप और ग्रामणीय इत्यादि कुछ कार्मिक थे जिनके नामों का उल्लेख ऋग्वेद में हमें जरूर मिली है। सेना स्थायी योद्धाओं का समूह नहीं था, और इसमें योग्य जनजाति व्यक्तियां भी शामिल थे जिन्हें केवल युद्ध के दौरान ही सक्रिय किया जाता था। तस्मे यानी बढ़ाई और रथकार यानी रथ निर्माता और रथ बनाने की सरकारी जिम्मेदारी निभाते थे। कर संग्रह के लिए किसी भी कर्मचारी का उल्लेख नहीं मिलता है। लोग जो भी भेंट मुखिया को देते थे उसे बलि कहते थे, और यह आम जनजाति लोग द्वारा विशिष्ट अवसरों पर दिए जाने वाला स्वैच्छिक योगदान था। यानी बलि जो होता था एक तरह का जनजातियों के द्वारा दिए जाने वाले मुखिया को स्वैच्छिक योगदान था, भेंट थी। इसे यही दृष्टिगोचर होता है कि आरंभिक वैदिक कालीन राज्य व्यवस्था बिल्कुल ही जटिल नहीं थी और सभी जनजाति लोग की सहायता और भागीदारी पर आधारित थी, परंतु उत्तर वैदिक काल में इस परिस्थिति में परिवर्तन आ गया था जिसका परिचय आगे दिया जा रहा है। The next here is the changing in the later Vedic phase. There is the most important here. The changes in the material as a social life during to the later Vedic period led to be change in the political sphere as well. The nature of the chiefships are changed in the period. The territorial idea gained to around. The people start to the laws. There is a control over to chief, and the popular assembly gradually are disappeared. The chiefships and the become a hereditary. The idea of divines is the nature of the kingship get a mention in the literature of this period. The Brahman help in the chief in this process. The elaborate to the is a coronations or rituals such as a Vajpaya as a Rajya Soya establish the chief's authorities. As the chiefs become more powerful and authorities of popular assemblies start of warning. The officers were appointed to help the chief in administration, and they acquired the function of the popular assembly as a main advisor. A rudimentary army to be emerged as the important element of the political structure during this period. And all this live on the text is called Bali, and the Shulk and the Bhaga is offered by the people, and the chief of the period belong to be Sastriya, one as there is a legals where there is a Brahmans try to establish of complete control over to people in the name of the Dharma. However, all these elements do not be sure that is a Janpada and the territory state with all it is a attribute are such as the standing army and bureaucracy had emerged in the later
Vedic period. But this process has started as soon after the Vedic period in the 6th century BC. We notice the rise of the 16 Mahajanpad in the northern India. That is the most important here. यहाँ पर जो हमारे समक्ष आया अत्यंत महत्वपूर्ण पॉइंट उत्तर वैदिक काल में आए परिवर्तन। देखिए उत्तर वैदिक काल में क्या परिवर्तन आए, कैसा परिवर्तन था उत्तर वैदिक काल में। कहते हैं उत्तर वैदिक काल के दौरान भौतिक और सामाजिक जीवन में आए परिवर्तन का प्रभाव राजनीतिक क्षेत्र में आए परिवर्तन पर भी पड़ा। प्रमुख जो नेता से लोगों का नियंत्रण ढीला पड़ने लग गया और जिसके परिणाम स्वरूप लोकप्रियता संस्थाएं जो धीरे धीरे समाप्त हो गई। यानी ये बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है कि प्रमुख नेताओं के लोगों का नियंत्रण ढीला पड़ने लगा और जिसके परिणाम स्वरूप लोकप्रिय संस्थाएं धीरे धीरे समाप्त सी हो गई। मुखिया का पद जो है वंशागत पिता के बाद पुत्र बन गया था, यानी जो है पिता के बाद पुत्र को दे दिया गया था, लेकिन हमने अभी ऊपर पढ़ा कि ऐसा नहीं था उस समय। इस काल के साहित्य में उल्लेख मिलता है कि लोगों में धारणा थी कि राजा का पद दैव्य होता है और ब्राह्मणों ने जो है मुखिया को इस प्रक्रिया में सहायता किया है। वाजपेयी और राजस्व जैसे जो है राज्याभिषेक के विस्तृत धार्मिक कर्मकांड जो है मुखिया का प्राधिकारी स्थापित करते थे। जैसे जैसे मुखिया की शक्ति बढ़ती गई जनप्रिय सभाओं की जो है प्राधिकार कम होने लग गए। मुखिया को जो है प्रशासनिक सहायता देने के लिए अधिकारियों की नियुक्ति की जाती थी और उन्हें प्रमुख जो है परामर्शदाताओं के रूप में लोकप्रिय सभा के कार्यों को हथिया लिया गया था। इस काल के दौरान एक आरंभिक सेना की रचना भी राजनीतिक व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण तत्व बन गया था और इन सभी की जो है जीविका लोगों द्वारा दी जाने वाली एक प्रकार के कर जैसे बलि शुल्क और भाग पर निर्भर करती थी। इस प्रकार में मुखिया क्षत्रिय वर्ण से संबंध थे और उन्हें ब्राह्मणों के संयोजन से धर्म के नाम पर लोगों पर नियंत्रण करने का सदैव प्रयास करते रहे। परंतु इन सभी तत्वों से यह जानकारी नहीं मिलती कि जनपद और प्रादेशिक राज्य अपनी सभी विशेषताओं जैसे स्थायी सेना और नौकरशाही की व्यवस्था का जो है उद्भव उत्तर वैदिक काल में हुआ हो। इसी के साथ दोस्तों हमारा ये चैप्टर जो है ख़त्म हो जाता है, जो कि बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट था। अगला चैप्टर और भी इंपॉर्टेंट था, अगला चैप्टर देखना मत भूलना। इसी तरह लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहना।